This question is about the electrolysis of concentrated aqueous potassium bromide. So electrolysis of aqueous, when you talk about the electrolysis of aqueous concentrated potassium bromide, so the key word is that concentrated aqueous potassium bromide, and we are using inert electrodes, bete. Okay. So what is meant by term electrolysis? Now let's go towards the first question, and that is basically what is meant by electrolysis. So मेरे बच्चों 2 marks के लिए you need to mention 2 points. The first point is the breakdown of an ionic compound. The breakdown of an ionic compound. Ionic compound when in molten or aqueous form. When in molten or aqueous form. So मेरे बेटे breakdown of an ionic compound, आप ionic compound को ब्रेक डाउन कर सकते हो जब वो किस फॉर्म में होगा, मोल्टन और एक्वस फॉर्म में, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके. सो मेरे बेटे 2 marks के लिए आपको ये पॉइंट भी मेंशन करना है, ये भी पॉइंट मेंशन करना है. और जस्ट इफ़ यू मेंशन दिस द ब्रेक डाउन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो प्लीज़ इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो मोल्टन और एक्वस फॉर्म में होना चाहिए. ओके. Now the next part is state why graphite is suitable for use as an electrode. So इसमें क्या होगा, because this is inert, because this graphite is inert. Now write an half ion equation for the formation of hydrogen. For the formation of hydrogen, उसने आपको पहले से ही बता दिया कि हाइड्रोजन कैथोड पे बन रहा है. सो मेरे बेटे अगर हम कैथोड की बात करें, सो आपके पास कैथोड के ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ नेगेटिव, एंड कैथोड पे मेरे बेटे रिडक्शन होती है. सो आपके पास 2 हाइड्रोजन आइंस आप मेंशन करोगे. 2 हाइड्रोजन आइंस, दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज द हाफ आयन इक्वेशन. सो आई एम गोना मेंशन दिस हाफ आयन इक्वेशन. 2 हाइड्रोजन आइंस will gain 2 electrons and they will form hydrogen gas. Okay. And the next part is the name the type of particle responsible for the transfer of charge in conducting wires. मेरे बेटे वायर्स में आपके पास जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स. तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करना है. नेक्स्ट, द नेम ऑफ द टाइप ऑफ पार्टिकल, द नेम ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द transfer of charge in aqueous potassium bromide. So type of particle responsible for the transfer of charge in aqueous. So जब आप aqueous potassium bromide की बात करोगे तो आयंस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे होंगे. सो बेसिकली आपने यहाँ पे आयंस मेंशन करना है बिकॉज दीज आर नॉट वायर्स. ठीक है. सो नेक्स्ट इज स्टेट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डाइल्यूट एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड. सो मेरे बेटे वही क्या कह रहा है कि आपने प्रोडक्ट्स के नेम बताने व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द डाइल्यूट एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड. ओके. सो जब हम डाइल्यूट की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी वर्किंग करते हैं कि हमारे पास डाइल्यूट एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड. सो आई एम गोना राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द पोटेशियम ब्रोमाइड विच इज़ दिस. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट यू नीड टू राइट डाउन द आयन्स. ठीक है. ये मैं प्रॉपर वर्किंग कर रहा हूँ. पोटेशियम and bromide ions, dilute aqueous है, so you will end up with the hydrogen and an hydroxide ion. Okay. So we have altogether 4 ions because we are talking about dilute aqueous potassium bromide. So we have 4 ions, 2 ions from the potassium bromide and 2 ions from the water. Now I'm going to write down the anode and beta cathode. So we know that anode has a positive charge, cathode is a negative charge in case of electrolysis, and at anode oxidation take place, at cathode reduction take place. Okay. So I'm going to write down reduction and this is what oxidation. Okay. So we have 2 ions जिसके ऊपर चार्ज जो है नेगेटिव है. एक हाइड्रोक्साइड आयन और ब्रोमाइड आयन है. अब हाइड्रोक्साइड आयन, ब्रोमाइड आयन both possess negative charge. They will attract towards the anode, but according to selective discharge table, ease of discharge increases down the group. So हाइड्रोक्साइड आयन आपके पास सेलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल में सबसे नीचे है. सो इसके लिए आसान है डिस्चार्ज होना. तो आप हाइड्रोक्साइड आयन जब डिस्चार्ज होगा, सो हमने 4 हाइड्रोक्साइड आयन लेने. सो डाइल्यूट है 4 हाइड्रोक्साइड आयन, दे विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन, फॉर्म 2 molecules of water and oxygen gas. So
एनोड पे आपके पास आपने क्योंकि नेम मेंशन करना है, सो आप लिखोगे ऑक्सीजन गैस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैथोड। नाउ मेरे बेटे हमारे पास कैथोड पे पोटेशियम आयंस हैं। कैथोड have a negative charge, so definitely potassium ions and the hydrogen ions, they will attracted towards the cathode, or according to reactivity series hydrogen ion is below than the potassium ion, so definitely जो आपके पास hydrogen होगा it will discharge and will form the product. So at cathode reduction take place, so two hydrogen ions they will gain electron and form hydrogen gas. Okay, so हमारे पास जो यहाँ पे बन रही गैस वो कौन सी बन रही है? हाइड्रोजन गैस। Okay, and the next question is, a concentrated aqueous solution of sodium chloride is electrolyzed using carbon electrodes. तो मेरे बेटे हमारे पास concentrated aqueous sodium chloride है। जब भी मेरे बेटे word concentrated आ जाता है तो concentrated में always halide ion will be discharged. So first of all let's decide the ions. We have 4 ions because this is concentrated aqueous: sodium ion, chloride ion, hydrogen ions and the hydroxide ion. Okay बेटे, so we have 4 ions. अब हमने ये चीज़ याद करनी है कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर आपके पास हेलाइड आइंस हमेशा डिस्चार्ज होंगे। सो आपके पास यहाँ पे हेलाइड आइन कौन सा है? क्लोराइड आइन। सो क्लोराइड आइन ऑलवेज डिस्चार्ज। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड आपने याद रखना है ऑलवेज हेलाइड आइन। सो हेलाइड क्लोराइड अगर ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो तो वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे जो एनोड की तरफ आपके पास एनोड, बल्कि मैं यहाँ प्रॉपर वर्किंग करता हूँ, एनोड सो मैं यहाँ पे एनोड लिख रहा हूँ और यहाँ पे कैथोड लिख रहा हूँ। ओके बेटे, एनोड हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, कैथोड हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन। अब मेरे बेटे एनोड पे आपके पास क्लोराइड एन डिस्चार्ज होंगे, सो 2 क्लोराइड एन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्लोरीन। सो नेम बताना है तो आपके पास एनोड पे क्लोरीन जो है वो डिस्चार्ज हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैथोड। मेरे बेटे कैथोड में देयर इज फाइट बिटवीन द सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। So definitely according to reactivity series hydrogen ion below than the sodium ion, so definitely आपके पास hydrogen ion will be discharged. So we are going to take 2 hydrogen ion, they will gain electron because cathode पे reduction होती है बेटे, ठीक है? Cathode is the site where reduction take place. तो reduction होगी, so 2 hydrogen ion will gain 2 electron form hydrogen gas. तो आपके पास cathode पे क्या बनेगी? Hydrogen. Okay? And the next thing is the right and half ion equation occurring at the negative electrode. तो बेटे negative electrode के ऊपर half ion equation क्या है? That is 2 hydrogen ion, they will gain 2 electrons and form hydrogen gas. Okay, and the next part is dilute aqueous. So when we talk about dilute aqueous sodium chloride, तो मेरे बेटे dilute में क्या होगा? Again आपके पास 4 ions हैं, ठीक है? अब हम वर्किंग करते हैं dilute के लिए, ठीक है? So इसकी वर्किंग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। आई डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब मेरे बेटे कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में हमारे पास आइंस कितने आ रहे हैं? डेफिनेटली 4 आइंस आएंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन कम फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड and hydrogen and hydroxide ion comes from the water. So all together we have 4 ions in the dilute aqueous solution of sodium chloride. Okay, now according to selective discharge table हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ईजिली डिस्चार्ज होगा। ओके, सो अब यहाँ पे हेलाइड आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन की जो फाइट होगी वो विन कौन करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन, अकॉर्डिंग टू सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल। सो जब सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल के मुताबिक हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होंगे, सो दे विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ऑक्सीजन गैस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एंड अगर हम कैथोड की बात करें तो मेरे बेटे कैथोड पे आपके पास प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? सोडियम और हाइड्रोजन आयन में से अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज जो आयन रिएक्टिविटी सीरीज में बिलो है, ठीक है, सो वो आपके पास डिस्चार्ज होगा। सो हाइड्रोजन आयन इज बिलो देन द सोडियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो 2 हाइड्रोजन आयन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। नाउ क्वेश्चन ये है कि नेम द मेन प्रोडक्ट फॉर्म एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सी प्रोडक्ट बन रही है? ऑक्सीजन। ओके,